प्रोवर्ब्स 21 चैप्टर किंग्स जेम्स वर्शन में से हम पढ़ेंगे। किंग्स जेम्स वर्शन में से पढ़ेंगे चैप्टर 20 फर्स्ट वर्स है। Wine is a mocker, strong drink is raging, and whosoever is deceived thereby is not wise. The fear of a king is as the roaring of a lion. Whoso provoketh him to anger sinneth against his own soul. It is an honor for a man to cease from strife, but every fool will be meddling. The sluggard will not plough by reason of the cold, therefore shall he beg in harvest and have nothing. Counsel in the heart of man is like deep water, but a man of understanding will draw it out. Most men will proclaim everyone his own goodness, but a faithful man who can find? The just man walketh in his integrity, his children are blessed after him. A king that sitteth in the throne of judgment scattereth away all evil with his eyes. Who can say, I have made my heart clean, am pure from my sin? Divers weights and divers measures, both of them are alike abomination to the Lord. Even a child is known by his doings, whether his work be pure and whether it be right. The hearing ear and the seeing eye, the Lord hath made even both of them. Love not sleep, lest thou come to poverty. Open thine eyes, and thou shalt be satisfied with bread. It is not, saith the buyer, but when he is gone his way, then he boasteth. There is gold and a multitude of rubies, but the lips of knowledge are a precious jewel. Take his garment, that is surety for a stranger, and take a pledge of him for a strange woman. Bread of deceit is sweet to a man, but afterwards his mouth shall be filled with gravel. Every purpose is established by counsel, and with good advice make a war. He that goeth about as a tale-bearer revealeth secrets. Therefore meddle not with him that flattereth with his lips. Whoso curseth his father or his mother, his lamp shall be put out in obscure darkness. Oh my God. An inheritance may be gotten hastily at the beginning, but the end thereof shall not be blessed. Say not thou, I will recompense evil, but wait on the Lord, and he shall save thee. Divers weights are an abomination unto the Lord, and a false balance is not good. Man's goings are of the Lord. How can a man then understand his own way? It is a snare to the man who devoureth that which is holy, and after vows to make inquiry. A wise king scattereth the wicked, and bringeth the weal over them. The spirit of man is the candle of the Lord, searching all the inward parts of the belly. Mercy and truth preserve the king, and his throne is upholden by mercy. The glory of young men is their strength, and the beauty of old men is the grey head. The blueness of a wound cleanseth away evil, so do stripes the inward parts of the belly. Chapter 21 फर्स्ट वर्स से पढ़ेंगे। द किंग्स हार्ट इज इन द हैंड ऑफ द लॉर्ड, एज द रिवर्स ऑफ वाटर ही टर्नeth it whithersoever he will. Every way of a man is right in his own eyes, but the Lord pondereth the hearts. To do justice and judgment is more acceptable to the Lord than sacrifice. An high look and a proud heart, and the ploughing of the wicked is a sin. The thoughts of the diligent tend only to plenteousness, but
of everyone that is hasty only to want the getting of treasures by a lying tongue is a vanity tossed to and fro of them that seek death. The robbery of the wicked shall destroy them, because they refuse to do judgment. The way of a man is froward and strange, but as for the pure, his work is right. It is better to dwell in a corner of the housetop than with a brawling woman in a wide house. The soul of the wicked desireth evil, his neighbor findeth no favor in his eyes. When the scorner is punished, the simple is made wise, and when the wise is instructed, he receiveth knowledge. The righteous man wisely considereth the house of the wicked, but God overthroweth the wicked for their wickedness. Whoso stoppeth his ears at the cry of the poor, he also shall cry himself, but shall not be heard. 13th वचन को ध्यान रखना है. A gift in secret pacifieth anger, and a reward in the bosom strong wrath. It is joy to the just to do judgment, but destruction shall be to the workers of iniquity. The man that wandereth out of the way of understanding shall remain in the congregation of the dead. He that loveth pleasure shall be a poor man. He that loveth wine and oil shall not be rich. The wicked shall be a ransom for the righteous, and the transgressor for the upright. It is better to dwell in the wilderness than with a contentious and an angry woman. There is treasure to be desired and oil in the dwelling of the wise, but a foolish man spendeth it up. He that followeth after righteousness and mercy findeth life, righteousness, and honor. A wise man scaleth the city of the mighty, and casteth down the strength of the confidence thereof. Whoso keepeth his mouth and his tongue keepeth his soul from troubles. Proud and haughty scorner is his name, who dealeth in proud wrath. The desire of the slothful killeth him, for his hands refuse to labor. He coveteth greedily all the day long, but the righteous giveth and spareth not. But the righteous giveth and spareth not. The sacrifice of the wicked is abomination. How much more when he bringeth it with a wicked mind? A false witness shall perish, but the man that heareth speaketh constantly. A wicked man hardeneth his face, but as for the upright, he directeth his way. There is no wisdom, nor understanding, nor counsel against the Lord. The horse is prepared against the day of a battle, but safety is of the Lord. नीति वचन 20 अध्याय और 21 अध्याय पढ़ेंगे हम बीएसआई बाइबल में से. 20 अध्याय पहले वचन से पढ़ेंगे. दाख मधुर ठट्ठा करने वाला और मदिरा हल्ला मचाने वाली है. जो कोई उसके कारण चुप करता है वह बुद्धिमान नहीं. राजा का भय दिखाना सिंह का गरजना है. जो उस पर रोष करता वह अपने प्राण का अपराधी होता है. हालेलुया.
मुकदमे से हाथ उठाना पुरुष की महिमा ठहरती है, परंतु सब मूढ़ झगड़ने को तैयार होते हैं। आलसी मनुष्य शीत के कारण हल नहीं जोतता, इसलिए कटनी के समय वह भीख मांगता और कुछ नहीं पाता। मनुष्य के मन की युक्ति अथाह तो है, तो भी समझ वाला मनुष्य उसको निकाल लेता है। बहुत से मनुष्य अपनी कृपा का प्रचार करते हैं, परंतु सच्चा पुरुष कौन पा सकता है? धर्मी जो खराई से चलता रहता है, उसके पीछे उसके बाल बच्चे धन्य होते हैं। हालेलुया। राजा जो न्याय के सिंहासन पर बैठा करता है, वह अपनी दृष्टि ही से सब बुराई को छांट लेता है। कौन कह सकता है कि मैंने अपने हृदय को पवित्र किया अथवा मैं पाप से शुद्ध हुआ हूँ? घटते बढ़ते बटखरे और घटते बढ़ते नपुए, इन दोनों से यहोवा घृणा करता है। लड़का भी अपने कामों से पहचाना जाता है कि उसका काम पवित्र और सीधा है या नहीं। सुनने के लिए कान और देखने के लिए जो आंखें हैं, उन दोनों को यहोवा ने बनाया है। नींद से प्रीति न रख, नहीं तो दरिद्र हो जाएगा। आंखें खोल, तब तो रोटी से तृप्त होगा। मोल लेने के समय ग्राहक अच्छी नहीं कहता है, परंतु चले जाने पर बड़ाई करता है। सोना और बहुत से मूंगे तो है, परंतु ज्ञान की बातें अनमोल मनी ठहरी है। जो अनजाने का उत्तरदायी हुआ, उसका कपड़ा, और जो पराये का उत्तरदायी हुआ, उससे बंधक की वस्तु ले रख। चोरी छिपे की रोटी मनुष्य को मीठी तो लगती है, परंतु बाद में उसका मुंह कंकड़ों से भर जाता है। हालेलुया। सब कल्पनाएं सम्मति ही से स्थिर होती है और युक्ति के साथ युद्ध करना चाहिए। 19 वचन। जो लुतराई करता फिरता है, वह भेद प्रकट करता है, इसलिए बकवादी से मेल जोल न रखना। जो अपने माता पिता को कोसता, उसका दिया बुझ जाता और घोर अंधकार हो जाता है। जो भाग पहले उतावली से मिलता है, अंत में उस पर आशीष नहीं होती। मत कह मैं बुराई का बदला लूंगा, वरन यहोवा की बाट जो हतारा है, वह तुझको छुड़ाएगा। हालेलुया। घटते बढ़ते बटखरों से यहोवा घृणा करता है और छल का तराजू अच्छा नहीं। मनुष्य का मार्ग यहोवा की ओर से ठहराया जाता है। आदमी कैसे अपना चलना समझ सके? जो मनुष्य बिना विचारे किसी वस्तु को पवित्र ठहराए और जो मन्नत मानकर पूछ पाछ करने लगे, वह फंदे में फंसेगा। बुद्धिमान राजा दुष्टों को फटकता है और उन पर दावने का पहिया चलवाता है। मनुष्य की आत्मा यहोवा का दीपक है, वह मन की सब बातों की खोज करता है। हालेलुया। राजा की रक्षा कृपा और सच्चाई के कारण होती है, और कृपा करने से उसकी गद्दी संभलती है। हालेलुया। जवानों का गौरव उनका बल है, परंतु बूढ़ों की शोभा उनके पक्के बाल है। चोट लगने से जो घाव होते हैं, वह बुराई दूर करते हैं, और मार खाने से हृदय निर्मल हो जाता है। 21 अध्याय पहले वचन से। राजा का मन नालियों के जल के समान यहोवा के हाथ में रहता है, जिधर वह चाहता उधर उसको मोड़ देता है। मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में तो ठीक होता है, परंतु यहोवा मन को जांचता है। धर्म और न्याय करना यहोवा को बलिदान से अधिक अच्छा लगता है। 21 अध्याय में से हम पढ़ रहे, चौथे वचन पर गए, आगे बढ़ते जाएंगे।
चढ़ी आंखें, घमंडी मन और दुष्टों की खेती तीनों पापमय है। कामकाजी की कल्पनाओं में से केवल लाभ होता है, परंतु उतावली करने वाले को केवल घटी होती है। जो धन झूठ के द्वारा प्राप्त हो वह वायु से उड़ जाने वाला कोहरा है। देखिए 6 वचन बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। हम बिलीवर्स होने के बावजूद भी ऐसे काम कर देते हैं जो छिपी रास्ते होते हैं, उसमें से हमारा कोई फ़ायदा करने की कोशिश करते हैं हम, लेकिन वो वायु के समान कोहरा उड़ जाने वाला है। जो धन झूठ के द्वारा प्राप्त हो वह वायु से उड़ जाने वाला कोहरा है। उसके ढूंढने वाले मृत्यु ही को ढूंढते हैं। जो उपद्रव दुष्ट लोग करते हैं उससे उन्हीं का नाश होता है, क्योंकि वे न्याय का काम करने से इनकार करते हैं। पाप से लदे हुए मनुष्य का मार्ग बहुत ही टेढ़ा होता है, परंतु जो पवित्र है उसका कर्म सीधा होता है। लंबे चौड़े घर में झगड़ालू पत्नी के संग रहने से छत के कोने पर रहना उत्तम है। दुष्ट जन बुराई की लालसा जी से करता है, वह अपने पड़ोसी पर अनुग्रह की दृष्टि नहीं करता। जब ठट्ठा करने वाले को दंड दिया जाता है तब भोला बुद्धिमान हो जाता है, और जब बुद्धिमान को उपदेश दिया जाता है तब वह ज्ञान प्राप्त करता है। धर्मी जन दुष्टों के घराने पर बुद्धिमानी से विचार करता है। ईश्वर दुष्टों को बुराइयों में उलट देता है। जो कंगाल की दुहाई पर कान न दे वह आप पुकारेगा और उसकी सुनी न जाएगी। ये कभी भी अपने जीवन में भूलना नहीं है। 14 वर्ष से आगे 14 वचन से आगे पढ़ेंगे। गुप्त में दी हुई भेंट से क्रोध ठंडा होता है और चुपके से दी हुई घूस से बड़ी जलजलाहट भी थमती है। न्याय का काम करना धर्मी को तो आनंद, परंतु अनर्थकारियों को विनाश ही का कारण जान पड़ता है। जो मनुष्य बुद्धि के मार्ग से भटक जाए उसका ठिकाना मरे हुओं के बीच में होगा। जो राग रंग से प्रीति रखता है वह कंगाल हो जाता है, और जो दाख मधु पीने और तेल लगाने से प्रीति रखता है वह धनी नहीं होता। दुष्ट जन धर्मी की छुड़ौती ठहरता है और विश्वासघाती सीधे लोगों के बदले दंड भोगते हैं। झगड़ालू और चिढ़ने वाली पत्नी के संग रहने से जंगल में रहना उत्तम है। बुद्धिमान के घर में उत्तम धन और तेल पाए जाते हैं, परंतु मूर्ख उनको उड़ा डालता है। जो धर्म और कृपा का पीछा करता है वह जीवन, धर्म और महिमा भी पाता है। बुद्धिमान शूरवीरों के नगर पर चढ़कर उनके बल को जिस पर वे भरोसा करते हैं नष्ट करता है। जो अपने मुंह को वश में रखता है वह अपने प्राण को विपत्तियों से बचाता है। हालेलुया। जो अभिमान से रोष में आकर काम करता है उसका नाम अभिमानी और अहंकारी ठट्ठा करने वाला पड़ता है। आलसी अपनी लालसा ही में मर जाता है, क्योंकि उसके हाथ काम करने से इनकार करते हैं। कोई ऐसा है जो दिन भर लालसा ही किया करता है, परंतु धर्मी लगातार दान करता रहता है। दुष्टों का बलिदान घृणित लगता है, विशेष करके जब वह महापाप के निमित्त चढ़ाता है। झूठा साक्षी नाश होता है, परंतु जिसने जो सुना है वही कहता हुआ स्थिर रहेगा। दुष्ट मनुष्य कठोर मुख का होता है, और जो सीधा है वह अपनी चाल सीधी करता है। हालेलुया। यहोवा के विरुद्ध न तो कुछ बुद्धि और न कुछ समझ, न कोई युक्ति चलती है। युद्ध के दिन के लिए घोड़ा तैयार तो होता है, परंतु जय यहोवा ही से मिलती है। हालेलुया।
हम 2 इयर्स का बाइबल रीडिंग प्लान पढ़ेंगे। 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। ल्यूक 21 चैप्टर 20 वर्स से 28 वर्स। 1 सैमुएल 26 चैप्टर। लूका रचित सुसमाचार 21 अध्याय 20 वचन से 28 वचन तक और 1 शमूएल 26 अध्याय। हम 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान, 2 इयर्स बाइबल रीडिंग प्लान अपने व्यक्तिगत समय में हम पढ़ेंगे, और जब हम अपने पर्सनल टाइम में, व्यक्तिगत समय में इन वचनों को पढ़ रहे हो, उस समय में परमेश्वर हमारे अंदर बहुत कुछ बातें ऐसी करेगा जो आने वाले समय में हमारे रास्ते बदल कर हमें कुछ ऐसी दिशाओं में लेकर जाएगा जो दिशाओं का हमको ज्ञान तो नहीं था कि कभी हमको ऐसे भी रास्ते चलना पड़ेगा, और ऐसे दिशाओं में से वो लेकर जाएगा, इतना महान रीति से हमारे जीवन का रास्ता बदल कर वो छुपाते हुए हमको लेकर जाएगा कि शत्रु हमें ढूंढ नहीं पाएंगे। ओके, तो हम निश्चित करना है ये बात को कि हमने ये 2 साल के प्लान जो बाइबल रीडिंग का है बहुत ध्यानपूर्वक अपने जीवन में लिए हुए चलना है, और हमने इसके वचन के अनुसार अपने जीवन को बदलने का समय देना है। हम बदलना है, इस वचन के अनुसार हमारे सब कुछ में असर आना चाहिए। ऐसा करते हुए 2 साल के अंत पे हम देखेंगे, हम परमेश्वर जहाँ हमको देखना चाहता है उस मंजिल में पहुँचे हुए रहेंगे, उस बर्तन हम बने हुए होंगे जो परमेश्वर हमें उपयोग में लेना चाहता है। और ऐसा होने के लिए परमेश्वर हम पर जोर ज़बरदस्ती नहीं डालता है, हमको अनुग्रह का आत्मा दिया है उसने, उस अनुग्रह के आत्मा का हमने निश्चित लाभ उठाना है। प्रभु यीशु मसीह हम सब के साथ बना रहे। आमीन, आमीन, आमीन। अब फादर गॉड, पवित्र आत्मा, हम खास तरीके से मांगते हैं शत्रुओं से छुपाते हुए चले जाने का रास्ते हमको दे, ताकि हम उस मंजिल में दिखाई दे जिसमें हमको होना चाहिए। नासरी यीशु के नाम में हमें फिट एंड फिक्स कर पवित्र आत्मा, हमें ऑर्डरलीनेस में लेकर आ, व्यवस्थित कर हमको। हम नासरी यीशु मसीह के नाम में पिता विनती करते हैं, सुन और कबूल कर मेरे पिता। आमीन, आमीन, आमीन।